Hello everyone, I am Yamini Tukral, your biology mentor for classes 11th and 12th at Adda 24/7 School। तो आज हम लोग ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के एनसीईआरटी क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस के साथ। So the first question is, what are the factors that affect the rate of diffusion? Rate of diffusion हमारे कौन से factors affect करते हैं? सबसे पहला हमारा आता है density। So the rate of diffusion of a substance, it is inversely proportional to the density, inversely proportional to the basically square root of the relative density, which is the Graham's law. Inversely proportional मतलब क्या हो जाएगा हमारा? Rate of diffusion square root of density, है ना? तो अगर रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा है तो हमारी डेंसिटी कम है, और डेंसिटी ज्यादा है तो हमारा रेट ऑफ डिफ्यूजन कम है। सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप रहता है। सेकंड, permeability of the membrane, the rate of diffusion it decreases with the density of the medium। तो जितना ज्यादा मेम्ब्रेन मीडियम जो है वो permeable रहेगा उतना ज्यादा जो है हमारा रेट ऑफ डिफ्यूजन रहेगा। टेम्परेचर, a rise in temperature increases the rate of diffusion, ठीक है। Because of it the sugar crystals do not dissolve easily in ice cold water, but they can easily dissolve in the warm water। So rate of diffusion it increases with the increase in temperature, मतलब directly proportional। Diffusion pressure gradient, so the rate of diffusion is directly proportional to the difference of the diffusion pressure at the two ends of a system and inversely proportional to the distance। अगर distance ज़्यादा होगा तो rate of diffusion कम होगा, है ना। अगर distance ज़्यादा होगा तो diffusion तो कम ही होगा। तो इसलिए diffusion, rate of diffusion और हमारे डिस्टेंस के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है, पर हमारा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है टू द डिफरेंस ऑफ द डिफ्यूजन प्रेशर। अगर रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा है तो जो उसका डिफरेंस इन डिफ्यूजन प्रेशर है वो भी ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर पोरेंस, व्हाट रोल डू दे प्ले इन डिफ्यूजन? पोरेंस क्या होते हैं? हमारे बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं जो कि ह्यूज पोर्स बनाते हैं इन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड सम bacteria, which allows the molecules up to the size of small proteins to pass through it। Porins, they are basically holes जिसकी वजह से जो है ट्रांसपोर्टेशन होता है। So thus they play an important role in facilitated diffusion। They form the protein channels। होल्स होते हैं जिसके थ्रू जो है हमारा प्रोटीन्स जो है कुछ मॉलिक्यूल्स जो है पास कर जाते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं, सेमी परमिएबल होता है। Next question, describe the role played by the protein pumps during active transport। Active transport में हमारा protein pump का क्या रोल पे रहता है? So active transport it uses energy to pump molecules because it occurs against the concentration gradient from the low concentration to the higher concentration। So the active transport it is carried out by membrane। It plays a major role in both active as well as passive transport। So pumps, they are the proteins that use energy to carry the substances across the cell membrane। Proteins जो होते हैं, protein pumps basically they are used to carry the solute particles or the particles across the membrane। membrane के across ले जाने में मदद करते हैं in the active transport। They can act as basically carriers, they are the carriers। So these pumps they can transport substances from a low concentration to a high concentration, that is uphill transport। Example है हमारा hydrogen pump, potassium pump, chlorine pump, sodium potassium pump। So the pumps they operate with the help of ATP। अब active transport है तो ATP और energy हमें चाहिए ही चाहिए। उसके अलावा में हमें जो है ये protein channels चाहिए होते हैं, protein pumps चाहिए होते हैं। तो potassium hydrogen exchange pump they occur in the guard cell। Sodium potassium exchange pump they operate across many animal membranes। So the transport rate it reaches a maximum जब सारे प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स जो हैं, जो पंप्स हैं, दे आर बीइंग यूज्ड और आर सैचुरेटेड। सो लाइक दी एंजाइम्स दीज कैरियर प्रोटीन्स दे आर वेरी स्पेसिफिक कि ये कौन सा जो है सब्सटेंस कैरी कर रहे हैं और अक्रॉस द मेम्ब्रेन लेके जा रहे हैं। सो दे आर सेंसिटिव टू द इनहिबिटर्स दैट रिएक्ट विद प्रोटीन साइड चेंज। दे आर सेंसिटिव टू द इनहिबिटर्स एज वेल। Next question, explain why pure water has the maximum water potential।
सो वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, काइनेटिक एनर्जी होती है. सो लिक्विड और गैसियस फॉर्म के अंदर क्या होता है, दे शो अ रैंडम मोशन दैट इज बोथ रैपिड एंड कांस्टेंट. सो जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगी वाटर की इन अ सिस्टम, उसकी उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी या फिर वाटर पोटेंशियल होगी. सो द वाटर पोटेंशियल psi w से हम लोग इसे डिनोट करते हैं. वाटर पोटेंशियल इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर. जितना ज्यादा वाटर जो होगा उतनी ज्यादा हमारी वाटर पोटेंशियल होगी. इसलिए प्योर वाटर की हमारी मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल होती है. Hence it is obvious that pure water will have the greatest water potential. Water potential it is denoted by a Greek symbol psi and it is expressed in pressure unit that are pascals. So by convention the water potential of the pure water at standard temperature which is not under any pressure, it is taken to be as 0. सो अगर कोई सोल्यूट जो है हमारा डिसॉल्व होता है इन द वाटर, द पोटेंशियल जो है उसकी कम हो जाती है बिकॉज द सोल्यूशन इट विल डिस्प्ले लेस वाटर, लेस फ्री वाटर एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर डिक्रीजेस, जिसकी वजह से वाटर पोटेंशियल भी डिक्रीज हो जाती है. इसलिए जो ऑल सोल्यूशंस दे हैव अ लोअर वाटर पोटेंशियल देन द प्योर वाटर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ब्रीफली डिस्क्राइब वाटर पोटेंशियल. अभी हम लोगों ने देखा वाटर पोटेंशियल, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट. तो हमारी वाटर पोटेंशियल क्या होता है, इट वाज फर्स्टली टेकन अप बाय टेलर एंड स्लेटियर. So the free energy per mole of any molecule, any particular chemical species in a multi-component system, it is known as the chemical potential of the species. Chemical potential क्या होता है, the free energy per mole of any particular chemical species in a multi-component system. So chemical potential of water उसको हम क्या बोलते हैं, water potential. सो साई जो है, साई डब्ल्यू जो हमारा वाटर पोटेंशियल है ऑफ द प्योर वाटर इज 0, जैसे कि अभी हमने पिछली स्लाइड के अंदर देखा था. क्योंकि जो सोल्यूट पार्टिकल्स है बेसिकली दे रिड्यूस द फ्री एनर्जी ऑफ द वाटर, जिसकी वजह से जो वाटर पोटेंशियल है हमारा नेगेटिव वैल्यू में चला जाता है. क्योंकि मैक्स जो होती है वाटर पोटेंशियल किसकी होती है, प्योर वाटर की, दैट इज 0. सो वाटर पोटेंशियल इट इज डिटरमाइंड बाय सोल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल प्लस द मैट्रिक पोटेंशियल. ठीक है, तो इसमें क्या है हमारा, वेयर साई एम इज द मेट्रिक पोटेंशियल, जो कि सरफेस के लिए यूज होता है, सच एज द सॉइल पार्टिकल्स, सेल वॉल, जिसकी वजह से जो है वाटर मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब होते हैं. साई एस हमारा क्या होता है, सोल्यूट पोटेंशियल होता है, जिसको हम लोग ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी बोलते हैं. इट इज द अमाउंट बाय विच वाटर पोटेंशियल इट इज रिड्यूस्ड. फिर हमारा लास्ट आता है साई पी विच इज द प्रेशर पोटेंशियल. साई पी क्या होता है, हमारा प्रेशर पोटेंशियल होता है, सच एज द टर्गर प्रेशर, वॉल प्रेशर. सो सिंस इन प्लास सिस्टम साई एम इट इज डिसरिगार्डेड, इसलिए जो है हम लोग साई डब्ल्यू को डिनोट करते हैं साई एस एंड साई पी. तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन 6. व्हाट हैपेंस व्हेन अ प्रेशर ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इट इज अप्लाइड टू द प्योर वाटर और अ सॉल्यूशन. क्या होता है जब हम लोग जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा लगा देते हैं प्योर वाटर पे या फिर सॉल्यूशन पे. सो इफ अ प्रेशर ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इट इज अप्लाइड टू द प्योर वाटर और अ सॉल्यूशन, जो उसका वाटर पोटेंशियल है वो इंक्रीज कर जाता है. सो इट इज इक्विवेलेंट टू पंपिंग वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर. इट प्रेशर इट कैन बी बिल्ट अप इन अ प्लांट सिस्टम व्हेन वाटर it enters a plant cell due to the diffusion causing a pressure build up against the cell wall and this makes the cell turgid. तो जब वाटर जो है हमारे सेल के अंदर आता है it causes a pressure build up against the cell wall, जो कि सेल को turgid बना देता है. Question 7th. A. With the help of well-labeled diagram, describe the process of plasmolysis in plants, giving appropriate examples. B. Explain what will happen to a plant cell if it is kept in a solution having higher potential, higher water potential. So, सबसे पहला हमारा plasmolysis का मतलब क्या होता है? Shrinkage होता है, जो कि मैंने आपको बताया था. So, shrinkage of the protoplasm of a cell from its cell wall under the influence of a hypertonic solution. जब जो सेल के आसपास वाला solution है, उसकी concentration सेल से ज्यादा हो, तो जो होता है हमारा सेल श्रिंक कर जाता है, क्योंकि सेल के अंदर वाटर क्वांटिटी ज्यादा है, बाहर वाले सॉल्यूशन में कम है, तो सेल से वो फ्लो कर जाएगी फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, और उससे हमारा सेल जो है श्रिंक कर जाएगा. ठीक है, सेल श्रिंक कर जाएगा, तो उस श्रिंकेज ऑफ सेल को क्या बोलते हैं हम लोग, प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं. और उस आउटर मूवमेंट ऑफ द वाटर, आउटसाइड मूवमेंट ऑफ द वाटर को हम लोग बोलते हैं एक्सोऑस्मोसिस या फिर विथड्रॉल ऑफ द वाटर. ठीक है, ठीक है. सो हमारा जो है
सबसे पहला द साइज ऑफ द साइटोप्लाज्म एज वेल एज द सेंट्रल वैक्यूल एंड हेंस द प्रोटोप्लाज्म इट बिकम्स रिड्यूस्ड. सो द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्लाज्मोलाइसिस इट इज नोन एज द लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस. जो प्रेशर पोटेंशियल होता है इसके अंदर जीरो होता है. ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन जो होती है इंटीरियर की इक्विवेलेंट होती है फ्रॉम द एक्सटर्नल सॉल्यूशन दैट इज आइसोटोनिक. सो द सेल इट इज फ्लैसीड. तो जैसे कि मैंने बताया कि प्रेशर पोटेंशियल जैसे ही नेगेटिव होता है जो प्रोटोप्लाज्म है इट विड्रॉज फ्रॉम द कॉर्नर्स and this stage it is known as incipient plasmolysis. The cell wall exerts no pressure on the cell contents, hence at this stage the hypertonic solution now enters the cell in between the protoplasm and the cell wall. So due to continuous exoosmosis क्या होता है, cell it shrinks further. एग्जाम्पल क्या है प्लाज्मोलिसिस का? पिकल्स, मीट एंड फिश दे आर प्रिजर्व्ड बेसिकली बाय द सॉल्टिंग. हम बोलते हैं कि उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स ऐड है. वो प्रिजर्वेटिव्स कौन से होते हैं? सॉल्टिंग होता है. जैसे जैम्स और जेलीज को भी हम लोग जो है स्वीटनिंग से प्रिजर्व कर सकते हैं. तो सॉल्टिंग एंड स्वीटनिंग इट क्रिएट्स अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जिसके अंदर फंजाई और बैक्टीरिया दे गेट किल्ड बाय द प्लाज्मोलिसिस. Salting it also gets the weeds of the lawns by inducing the plasmolysis. So जब हम लोग सेल्स को प्लेस करते हैं इन अ सॉल्यूशन हैविंग हायर वाटर पोटेंशियल दैट इज द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, वाटर जो है सेल के अंदर डिफ्यूज कर जाता है. वाटर जो है हमारा सेल के अंदर डिफ्यूज कर जाता है क्योंकि बाहर वाटर क्वांटिटी ज्यादा है, क्योंकि वाटर बाहर जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट है. तो वाटर बाहर से मूव कर जाता है इनसाइड द सेल और उसकी वजह से साइटोप्लाज्म जो है इट बिल्ड्स अप अ प्रेशर अगेंस्ट द वॉल दैट इज नोन एज द टर्गर प्रेशर. और उससे क्या होता है हमारा जो सेल है इट बिकम्स फ्लैसीड. फ्लैसीड होता है तो उसके बाद में वो क्या होता है इट स्वेल्स अप क्योंकि वाटर की मूवमेंट जो है इनवर्ड्स हो रही है. वाटर की मूवमेंट इनसाइड द सेल हो रही है तो सेल जो है हमारा स्वेल अप हो जाता है. Next question, how is the mycorrhizal association helpful in the absorption of water and the mineral ions? Mycorrhizal association के हमारे अंदर क्या आता है? Fungi which are associated with the roots of the higher plants. ठीक है. So some plants they have additional structures which are associated with them and that help in water and mineral absorption. So mycorrhiza क्या होता है? Symbiotic association होता है. It is a mutualistic relationship of the fungus with the root system. So the fungal filaments they form a network around the young root जो कि penetrate करते हैं in the root cells. ठीक है. सो उसके पास जो होता है फंगस के अंदर हाइफी होती है. दे हैव लार्ज सरफेस एरिया जिसकी वजह से वो मिनरल आयंस और वाटर को एब्जॉर्ब करती है फ्रॉम दी सॉइल और उसके बाद में उसे रूट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट कर देती है. ठीक है. सो दे ऑल्सो प्रोवाइड दी एन कंटेनिंग कंपाउंड्स. जो हमारे रूट्स हैं दे प्रोवाइड दी शुगर्स दैट इज द फूड टू द फंगस एंड द नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स टू द माइकोराइजा. सो सम प्लांट्स दे हैव एन ऑब्लिगेट एसोसिएशन विद द माइकोराइजा. फॉर एग्जांपल पाइनस सीड्स दे कैन नॉट जर्मिनेट एंड एस्टैब्लिश विदाउट द प्रेजेंस ऑफ माइकोराइजा. Next question, what role does the root pressure it plays in water movement in the plants? क्या रोल प्ले होता है हमारा रूट प्रेशर का जब हमारा वाटर मूवमेंट होती है इन दी प्लांट? सो वेरियस आयंस फ्रॉम दी सॉइल दे आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड इनटू द वैस्कुलर टिश्यूज ऑफ द रूट्स एंड वाटर फॉलोज and increases the pressure inside the xylem. So जब हमारे जो है various ions soil से actively transport होते हैं into the vascular tissues of the roots, water जो उनको follow करता है it increases the pressure inside the xylem. So this positive pressure it is known as the root pressure and it is responsible for pushing up of the water to small distances. So root pressure it can only provide a modest push in the overall process. थोड़ा सा ही distance का push देता है. They do not play a major role in water up to the trees. So the greatest contribution of the water root pressure it may be to re-establish the continuous chains of water molecules in the xylem, which often they break under the enormous tensions created by the transpiration. Next question, describe the transpiration pull model of water transport in plants. What are the factors influencing transpiration and how it is useful to the plants? तो हमने जो है बताना है कि ट्रांसपिरेशन पुल मॉडल क्या होता है और फैक्टर्स जो कि इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं हमारे ट्रांसपिरेशन को एंड हाउ इज इट यूजफुल टू द प्लांट्स. सो ट्रांसपिरेशन पुल हमारा वाटर मूवमेंट में कैसे हेल्प करता है? इट इज क्रिएटेड द ट्रांसपिरेशन पुल इट इज क्रिएटेड बाय द लॉस ऑफ वाटर और द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन विच इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर vapor by the pores of stomata and this is known as cohesion tension theory. तो इसके अंदर cohesion किसके बीच में होता है? cohesion होता है, adhesion होता है
एंड लास्टली जो होता है इसमें टेंशन होती है। तीन फोर्सेस जो है हमारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं। कोहेजन होता है द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जो है अट्रैक्टिव फोर्सेस में रहते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं इन द लिक्विड फेज। अडेशन, द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड ट्रैकेरी एलिमेंट्स, जिससे उन्होंने जो है ऊपर जाना होता है, तो उनके बीच में भी तो है जो है कोई बॉन्डिंग रहनी चाहिए। तो ट्रैकेरी एलिमेंट्स और वाटर के बीच में जो है जो बॉन्डिंग रहती है उसे हम लोग अडेशन बोलते हैं। कोहेजन होता है वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में। टेंशन होता है इट इज क्रिएटेड बाय ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन पुल जो एक टेंशन बनाता है और उसकी वजह से वाटर इट ट्रेवल्स अप टू लार्ज हाइट। सो the water that is lost during the daytime through the process of transpiration वो epidermal cells और guard cells को flacid कर देता है। So in turn these take the water from the xylem and it creates a negative pressure or a tension in the xylem vessel from the surface of the leaves to the root tips, ठीक है, so through the stem. So subsequently water in the xylem it gets pull as a single column of the stem, और जो adhesion और cohesion forces मैंने आपको बताए हैं and the cell walls of the xylem vessels restrict the splitting of the water molecule. ये जो कोहेजन और अडेशन के फोर्सेस होते हैं बेसिकली ये वाटर मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट नहीं होने देते, है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट नहीं होने देते। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द असेंट ऑफ जाइलम सैप। कौन से हमारे फैक्टर्स जो हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द असेंट ऑफ द जाइलम सैप। सो द जाइलम सैप इज असेंस मेनली ड्यू टू द forces which are present in the foliage of the plants as a result of the active transport. So जो है हमारे ट्रांसपिरेशन में फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वही हमारे असेंट ऑफ जाइलम सैप में होते हैं। सो वेरियस फैक्टर्स, सबसे पहला है हमारा कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी की अगर आप लोगों को प्रिंसिपल पता होगा कि जब हम कोई ग्लास ट्यूब किसी वाटर के अंदर प्लेस करते हैं फिर किसी भी सॉल्यूशन के अंदर प्लेस करते हैं तो सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली राइजेस अप इन द ग्लास ट्यूब। तो सबसे पहला हमारा होता है कैपिलैरिटी। देयर इज अ लिमिटेड राइज ऑफ वाटर इन द नैरो ट्यूब्स और कैपिलरीज बिकॉज ऑफ द फोर्सेस ऑफ द कोहेजन among the molecules of the water and their properties of adhesion to the other substances, ठीक है। नेक्स्ट, रूट प्रेशर। जो हमारा पॉजिटिव प्रेशर सैप के अंदर डेवलप होता है इट पुशेस द सैप फ्रॉम बिलो ड्यू टू द एक्टिव एब्जॉर्प्शन बाय द रूट। Next, transpiration pull. It creates a tension. So transpiration in the aerial parts it bring the xylem sap under negative pressure. Negative pressure build up करता है due to continuous withdrawal of the water. Continuous withdrawal of water की वजह से एक negative potential जो है वो build करता है. Then water column it does not break क्योंकि उसके अंदर high tensile strength होती है और high forces of cohesion and adhesion होते हैं. Next question, what essential role does the root endodermis it plays during the mineral absorption? तो root endodermis हमारा क्या role play करती है during the mineral absorption? So the endodermal cells they have many transport proteins जो कि कुछ ही solutes को pass on करने देते हैं, so they are selectively permeable. They are सेलेक्टिवली परमिएबल। जो सोल्यूट्स की जरूरत होती है ना बच्चे वही सोल्यूट्स को वो लोग ट्रांसपोर्ट करने देते हैं। एंडोडर्मिस के अंदर क्या होता है, एंडोडर्मिस के अंदर ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि कुछ ही सोल्यूट्स को मेम्ब्रेन क्रॉस करने देते हैं। सो द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स ऑफ द एंडोडर्मल सेल्स दे आर द कंट्रोल पॉइंट्स या फिर चेक पॉइंट्स हम लोग बोलते हैं जहां पे प्लांट्स जो है एडजस्ट करता है क्वांटिटी और द टाइप ऑफ सोल्यूट विच इज नीडेड बाय द प्लांट्स। बिकॉज ऑफ द लेयर ऑफ सुबरिन द रूट एंडोडर्मिस हैज द एबिलिटी टू actively transport the substances the ions in one direction, क्योंकि जाइलम के अंदर भी यूनिडायरेक्शनल होता है तो वही मिनरल आयंस का जो है यूनिडायरेक्शनल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई जाइलम ट्रांसपोर्ट इज यूनिडायरेक्शनल। वही क्वेश्चन आ गया। एंड व्हाई द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट इट इज बायडायरेक्शनल। सो हमारा वाटर जो है इट मूव्स ओनली अपवर्ड्स क्योंकि रूट से अगर हमारा वाटर आ रहा है वो हमेशा ऊपर ही जाएगा तो इट इज रूट एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स थ्रू द जाइलम। सो हेंस वाटर ट्रांसपोर्ट इट इज यूनिडायरेक्शनल। जो फूड है वो हमारा फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है अकॉर्डिंग टू आवर अजम्पशंस। वैसे जो है इंटरचेंजेबल हो सकते हैं। सो द फूड सिंथेसाइज्ड इन लीव्स एंड इट इज रिक्वायर्ड बाय बोथ रूट्स एंड द शूट सिस्टम। सो द फ्लोएम सैप है हमारा जो हमारा बेसिकली फ्लोएम सैप है वो ऊपर और नीचे दोनों सप्लाई करता है जिसकी वजह से इट मेक्स इट बाई डायरेक्शनल और मल्टी डायरेक्शनल।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस विच इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द ट्रांसलोकेशन ऑफ द शुगर। हमने जो है प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस बतानी है कि क्या है हमारी प्रेशर फ्लो या फिर मास फ्लो हाइपोथेसिस। सो द accepted mechanism which is used for the translocation of sugar from the source to the sink, it is known as the pressure flow hypothesis. And glucose, as it is prepared at the source, that is in leaves, by photosynthesis it is converted into sucrose, which is a disaccharide. So the sugar it is moved into sucrose in the adjacent companion cells. उसके बाद में उसको जो है living phloem के अंदर डाला जाता है in the sieve tube cells by the active transport. And this process of loading at the source it produces a hypertonicity. Hypertonic conditions जो है produce करता है phloem में. So जो water है हमारा adjacent xylem के अंदर वो क्या करता है, it moves into the phloem by osmosis. And as the osmotic pressure it builds up, the phloem sap will move to the areas of the lower pressure. So sink के अंदर क्या होता है, the osmotic pressure it must be reduced. So again active transport it is necessary to move the sucrose out of the phloem sap. सुक्रोज को फ्लोएम सैप से बाहर निकाला इनटू द सेल्स विच विल यूज द शुगर, क्योंकि हम सिंक पे आ गए हैं, कन्वर्टिंग इनटू एनर्जी स्टार्च और सेल्यूलोज एज शुगर्स आर रिमूव्ड. जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डिक्रीज करता है, उसकी वजह से वाटर इट मूव्स आउट ऑफ द फ्लोएम एंड इट एंटर्स द जाइलम. Next question, what causes the opening and the closing of the guard cells of stomata during the transpiration? जब हम लोग ट्रांसपिरेशन की बात करते हैं तो फर्स्ट हमें डेफिनेशन डिफाइन करनी है. ट्रांसपिरेशन इज द एवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर बाय द प्लांट्स. किसकी वजह से होता है? बाय द स्टोमेटा. एंड जो इमीडिएट ओपनिंग और क्लोजिंग होती है स्टोमेटा की, इट इज बाय द टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल्स. सो जो इनर वॉल होती है हर गार्ड सेल की टुवर्ड्स द पोर, इट इज थिक एंड इट इज इलास्टिक. तो जैसे ही टर्जिडिटी इंक्रीज होती है विद इन द टू गार्ड सेल्स फ्लैंकिंग ईच स्टोमेटल अपर्चर और पोर, जो थिन आउटर वॉल्स होती हैं वो बाहर की तरफ जाती हैं और वो फोर्स करती हैं इनर वॉल्स को टू अटेन अ क्रिसेंट शेप एंड दिस वे द स्टोमेटा इट ओपन्स, है ना, एंड दिस वे द स्टोमेटा इट ओपन्स. It is also aided due to the orientation of the microfibrils. Radially जो है arranged होते हैं in the guard cells. So cellulose microfibrils they are radially arranged rather than longitudinal. ऐसे जो है arranged होते हैं. ये हमारा स्टोमेटा है, ये यहाँ पे ज्वाइन कर लो. ऐसे जो है हमारे ये रेडियली जो है माइक्रोफिलामेंट सेल्यूलोजिक माइक्रोफिलामेंट्स अरेंज होते हैं. ठीक है, सो इट इजीली ओपन्स अप द स्टोमा, है ना. So when the guard cells they lose the turgor due to the water loss, the inner elastic walls वो जो है अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाती हैं और वही जो है गार्ड सेल्स भी फ्लेसिड हो जाते हैं और स्टोमा इट क्लोजेस. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग. एक एक करके सबकी डिफरेंशिएशन देख लेते हैं. फर्स्ट है डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस. डिफ्यूजन होती है मूवमेंट ऑफ ऑल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम अ हायर एरिया टू अ लोअर कंसंट्रेशन एरिया. ऑस्मोसिस क्या होती है? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स हायर फ्री एनर्जी और केमिकल पोटेंशियल टू अ लोअर फ्री एनर्जी और केमिकल पोटेंशियल. डिफ्यूजन इट कैन ऑपरेट इन एनी मीडियम. ऑस्मोसिस इट कैन ओनली ऑपरेट इन द लिक्विड मीडियम. सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं तो सिर्फ लिक्विड में होगा. डिफ्यूजन इट इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस. वहीं ऑस्मोसिस इट इज एप्लीकेबल टू ओनली सॉल्वेंट पार्ट, सिर्फ सॉल्वेंट पार्ट. डिफ्यूजन इट डज नॉट रिक्वायर एनी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, पर ऑस्मोसिस के अंदर हमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन चाहिए होती है क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर से सिर्फ सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा होता है. डिफ्यूजन इट इज डिपेंडेंट अपॉन द फ्री एनर्जी ऑफ द डिफ्यूजिंग सब्सटेंस. वहीं ऑस्मोसिस जो है इट इज डिपेंडेंट अपॉन द डिग्री ऑफ रिडक्शन ऑफ द फ्री एनर्जी. डिफ्यूजन इट हेल्प्स इन इक्वलाइजिंग द कंसंट्रेशन एंड ऑस्मोसिस क्या करता है? ऑस्मोसिस इट डज नॉट इक्वलाइज द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट ऑन द टू साइड्स ऑफ द सिस्टम. ठीक है, और डिफ्यूजन के अंदर हाइड्रोस्टैटिक या फिर टर्गर प्रेशर काम नहीं करता है, पर ऑस्मोसिस के अंदर टर्गर प्रेशर और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर काम करता है. डिफ्यूजन इट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय सोल्यूट पोटेंशियल, बट ऑस्मोसिस इट इज डिपेंडेंट ऑन द सोल्यूट पोटेंशियल. ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ अ सब्सटेंस इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर सब्सटेंस, पर ऑस्मोसिस जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंडेंट रहता है. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है ट्रांसपिरेशन एंड रेस्पिरेशन. ट्रांसपिरेशन हमारा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, प्लांट्स के अंदर होता है. इवेपोरेशन हमारा ट्रांसपिरेशन एंड इवेपोरेशन, तो फिजिकल प्रोसेस होता है इवेपोरेशन, इट अकर्स ओनली ऑन द फ्री सरफेस. ट्रांसपिरेशन द वाटर इट मूव्स थ्रू द एपिडर्मिस
with the cuticle or through the stomata. Per evaporation, any liquid it can evaporate. The living epidermis and stomata, they are not involved. पानी अगर अभी हम लोग यहाँ पे pour कर दे वो evaporate कर जाएगा, पर transpiration सिर्फ हमारा stomata के through होगा. ट्रांसपिरेशन में लिविंग सेल्स आर इन्वॉल्व, इवेपोरेशन में इट कैन अकर ऑन बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग. जैसे कि मैंने बताया, अगर हम पानी यहाँ पे अभी गिरा देंगे अभी के अभी वो इवेपोरेट कर जाएगा. ट्रांसपिरेशन में वेरियस फोर्सेस सच एज द वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, दे आर इन्वॉल्व, पर इवेपोरेशन में नॉट मच फोर्सेस आर इन्वॉल्व. ट्रांसपिरेशन में फॉर्मेशन ऑफ द वेपर्स दे कंटिन्यू फॉर सम टाइम इवन आफ्टर द सैचुरेशन, पर इवेपोरेशन के अंदर इट स्टॉप्स व्हेन द एयर इट इज फुल्ली सैचुरेटेड. सो द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इट इज स्लोअर देन द इवेपोरेशन, है ना. पर हमारा जो ये है इवेपोरेशन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द विंड. ट्रांसपिरेशन में इट इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल. इवेपोरेशन में इट कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज द वाटर इज अवेलेबल ऑन द सर्फेस. ट्रांसपिरेशन में वाटर वेपर्स दे आर फॉर्म्ड मोस्टली इन द इंटरनल टिश्यूज. इवेपोरेशन में वाटर वेपर्स दे आर फॉर्म्ड ऑन द फ्री सर्फेस ऑफ द वाटर. नेक्स्ट हमारा डिफरेंसेस है बिटवीन द ऑस्मोटिक प्रेशर एंड द ऑस्मोटिक पोटेंशियल. ऑस्मोटिक प्रेशर की हम बात करें, डेवलप्स इन द ऑस्मोटिक सिस्टम ड्यू टू द एंट्री ऑफ द वाटर. पर ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या होता है? इट इज लोअरिंग ऑफ द फ्री एनर्जी ऑफ वाटर इन अ सिस्टम बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल्स. ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे कन्फाइंड सिस्टम में होता है, पर ऑस्मोटिक पोटेंशियल इट इज प्रेजेंट वेदर द सॉल्यूशन अकर्स इन अ कन्फाइंड सिस्टम और एन ओपन सिस्टम. ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू जो है पॉजिटिव होती है और ऑस्मोटिक पोटेंशियल की नेगेटिव होती है. नेक्स्ट हमारा डिफरेंस है बिटवीन द इम्बाइबेशन एंड द डिफ्यूजन. इम्बाइबेशन क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ द सॉल्वेंट और द वाटर बाय अ सॉलिड सब्सटेंस. डिफ्यूजन क्या होता है हमारा? इट इज मूवमेंट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन एरिया टू अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन एरिया. इम्बाइबेशन इट प्रोड्यूसेस हीट, but diffusion it does not produce heat. Imbibition it can develop a very high pressure called imbibition pressure, but diffusion में कोई pressure develop नहीं होता है. नेक्स्ट हमारा डिफरेंस है बिटवीन द अपोप्लास्ट पाथवे एंड द सिम्प्लास्ट पाथवे. अपोप्लास्ट पाथवे जो है हमारे नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी में होता है, जैसे कि सेल वॉल्स एंड द इंटरसेलुलर स्पेसेस. सिम्प्लास्ट पाथवे जो है लिविंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी में होता है, विच इज द प्रोटोप्लास्ट, विच इज द कनेक्टेड बाय द प्लाज्मोडेस्माटा. अपोप्लास्ट में क्या होता है? देयर इज लिटिल रेजिस्टेंस इन द मूवमेंट ऑफ द वाटर, क्योंकि वो नॉन लिविंग से जा रहा है. पर सिम्प्लास्ट पाथवे के अंदर क्या होता है? सम रेजिस्टेंस इट अकर्स इन द मूवमेंट ऑफ द वाटर. अपोप्लास्ट पाथवे कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो फास्टर है. सिम्प्लास्ट पाथवे में रेजिस्टेंस है तो इट इज स्लाइटली स्लोअर. अपोप्लास्ट पाथवे में कोई मेटाबॉलिक जो है स्टेट ऑफ रूट इट डज नॉट अफेक्ट, क्योंकि वो नॉन लिविंग सब्सटेंसेस में से जा रहा है. पर सिम्प्लास्ट पाथवे क्योंकि वो लिविंग थिंग्स में से जा रहा है, लिविंग पार्ट्स में से जा रहा है, तो मेटाबॉलिक स्टेट ऑफ द रूट इट अफेक्ट्स द सिम्प्लास्ट पाथवे. नेक्स्ट है हमारा गटेशन एंड द ट्रांसपिरेशन. गटेशन क्या होता है? लॉस ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द प्लांट. प्लांट के ऊपर कभी लिक्विड ड्रॉपलेट्स पड़ी हुई देखिए, वो गटेशन होती है. पर ट्रांसपिरेशन होती है लॉस ऑफ वाटर बाय द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स. So gutated water it is a diluted solution of both organic and inorganic substances. पर जो transpirated water है वो pure water होता है. Guttation it occurs at the margins and at the tips of the leaf blades. ट्रांसपिरेशन जो है जनरल सरफेस से होता है, यंग स्टेम में से हो जाता है. गटेशन इट मोस्टली अकर्स ड्यूरिंग द नाइट एंड अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग. सुबह सुबह होता है ना. ट्रांसपिरेशन जो है ड्यूरिंग द हॉटर पीरियड्स ऑफ द डे में होता है एंड इट इज नेग्लिजिबल ड्यूरिंग द नाइट. गटेशन इट अकर्स थ्रू पोर्स नोन एज हेयाडाथोड्स, है ना. वहीं ट्रांसपिरेशन जो है स्टोमेटा, लेंटिसल्स और एपिडर्मल सेल से होता है. गटेशन के अंदर वाटर पोर इट इज ऑलवेज केप्ट ओपन, बट ट्रांसपिरेशन के अंदर स्टोमेटा इट कैन बी ओपन और क्लोज्ड. Guttation it does not occur condition of water deficiency, but transpiration continues even if the water is deficient in the plant. Excessive guttation does not cause the loss of turgidity, but transpiration जो है it produces wilting. तो बच्चों ये थे हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस ऑफ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स. ऐसे ही लेक्चर्स के लिए आपने क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है अड्डा 24/7 स्कूल के चैनल को. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय.